اچھا جی سردار صاحب، یہ بھی ہے کہ آپ بھی لیاری سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی کراچی سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، تو اختلافات میں کہیں یہ بھی بات شامل تو نہیں ہے؟ دیکھو، آزاد کسی کا بھی حق ہے. اگر بلاول ایک پاکستانی ہے، وہ کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، اس سے ہمیں اعتراضات نہیں ہیں. تو ہم بھی آزاد ملک کے شہری ہیں، اور ہمیں بھی حق ہے، ہم بھی کہیں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو الیکشن کے لیے انشاءاللہ وہ بھی تیاری کریں. وہ لیاری سے کڑے ہوں گے یا اندرون سندھ سے کڑے ہوں گے، ان کی مرضی ہے. لیکن ان کے سپورٹر تو یہ بھی ہے نا کہ پیپلز آرمی کمیٹی کے جو سرپرست تھے ذوالفقار مرزا صاحب، بلاول بھٹو اگر کھڑے ہوتے ہیں لیاری سے تو وہ تو سپورٹ کر رہے ہوں گے بھرپور انہیں. دیکھو، بالکل وہ سپورٹ کریں گے، کیونکہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے. اور ہم بھی جو ہے جیالے تھے، اب تو ہم نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. تو ہمارا ارادہ ہے آزاد الیکشن لڑنے کا. تو لازم عوام ہے، عوام کو جس کا اوپر اعتماد ہے اس کو ووٹ دے گا. اور پاکستانی عوام جو ہے جس کا اوپر اعتماد رکھتی ہے، اس کو بے شک اپنا ضمیر کے مطابق اس کو اپنا حق اور سچائی کا ووٹ کسی کو بھی دے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا، لیاری میں شرپسند کہتے ہیں کہ گینگ وار بھی ہے یہاں پر، منشیات فروش بھی ہیں یہاں پر، اسلحہ فروش بھی ہیں. اس بات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گورنمنٹ بھی کہتی ہے، جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں تمام لوگ اس بات کو ایشو ضرور بناتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہاں پر نہ منشیات فروش ہے نہ گینگ وار ہوتا ہے؟ دیکھو، اس میں جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ جو ہے ایسے کہانیاں جب تھیں. آج لیاری کے اندر تقریباً کافی سالوں سے ہم دیکھ کے آ رہے ہیں، تقریباً 95 سے ہم یہ سماجی کاموں میں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، تو یہ چیزیں لیاری کے اندر اب نہیں ہیں. یہ پرانی باتیں ہیں، ان کو دہرا رہے ہیں. اور اس باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ آج میڈیا آزاد ہے، اور میڈیا یہاں ہر جگہ لیاری کے گلیوں میں، روڈوں میں، اسکولوں میں دیکھ رہی ہے کہ لیاری کے لوگ جو ہے پرامن لوگ ہیں، اور لیاری کے پڑھے لکھے اور شعور یافتہ لوگ ہیں. اور لیاری کے جو اندر جو ہے کوئی جوئے نہیں ہے، کوئی منشیات نہیں ہے. اور لیاری کے عوام کو روزگار کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ اور لیاری کا جب شناختی کارڈ دیکھتے ہیں لیاری کا، تو آج ایک بچہ آیا میرا پاس کہ اس نے نیوی میں جو ہے اس نے ایگزام وغیرہ دے کے جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. وہ افسر کا پوسٹ میں لگ رہا تھا، مگر اس کا شناختی کارڈ کے سامنے لیاری لکھا ہوا تھا. اس کو نظر انداز کر کے اس کو نوکری نہیں دیا. اس کو کہا گیا کہ یہ 60 کروڑ روپے کا جہاز ہے، ہم آپ کو یہ دے نہیں سکتے، آپ لیاری والے ہو. کیا لیاری والے پاکستانی نہیں ہیں؟ میں یہ بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری سے اپیل کرتا ہوں کہ لہٰذا لیاری والے سب سے بڑے محب وطن ہیں، ان کے اوپر جو ہے اعتماد کیا جائے. اور ان کے اوپر کیوں ایسے افسران اعتماد نہیں کرتے، ان کے اوپر کارروائی کیا جائے. اور ہم لیاری والوں کو انشاءاللہ کڑا کر دیں کہ بارڈروں میں دیکھ لیں کہ لیاری والے انشاءاللہ سینے میں گولی کھائیں گے مگر ہٹیں گے نہیں لیاری والے. اور انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. تو کراچی میں بشمول لیاری سمیت اگر ہم بات کرتے ہیں پوری کراچی کی، تو کراچی میں آپ کے خیال میں بھتہ خوری میں کون سی سیاسی جماعت ملوث ہے؟ دیکھو، 170 بتہ کور پکڑے گئے، ان میں سے ایک بھی لیاری والا نہیں ہے. اور اس میں میڈیا نے خود دکھایا، اور ایجنسیوں کے پاس رپورٹ ہے، آئی جی مشتاق شاہ کے پاس بھی رپورٹ ہے، لیاری والے ان میں سے ایک بھی ملوث نہیں تھا. لیکن یہ بھی تو سردار صاحب حقیقت ہے کہ 8 دن یہاں آپریشن چلتا رہا تو کراچی میں بھتہ خوری ان دنوں میں کم ہوئی ہے. دیکھو، اس میں جو سیاسی تنظیم ہے کراچی، ہمارا کہتا ہے کبھی صوبے کا بات کرتا ہے، وہ بڑے چالاک اور شاطر لوگ ہیں. وہ ایسے ہزار سازشیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہوئی اسی سازش کی کڑی ہے. اور میں اس چیز پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لیاری والوں نے بتہ نہیں دیا ہے. ایک زمانے میں اگر کیا ہوگا ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 سالوں کے اندر کہ لیاری والوں نے بتہ کوری نہیں کی ہے. اور بتہ کوری شہر کے لوگ ہیں، ارشد پپو گروپ ہے جو متحدہ کے کہنے سے بتہ کوری کر رہے اور بلوچ کمیونٹی کو بھی بدنام کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی سازش ہے کہ وہ سازش کی کڑی بھی یہی ہے کہ کراچی کو صوبہ بنانے کا. کیونکہ جب وہ بلوچوں سے اردو اسپیکنگ کا قتل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمام اردو اسپیکنگ آ کے متحدہ کے ساتھ جوائنڈ ہو جائیں اور کوپ اور ڈر کے مارے. مگر ہمارے لیاری میں بیار کالنی بھی موجود ہے، آگرہ تاج بھی موجود ہے، جو ہے یہاں کافی اردو اسپیکنگ رہتے ہیں. ہمارا برابر میں اور بھی ایسے علاقے ہیں، کمبار واڑہ ہے جہاں وہاں پر بھی اردو اسپیکنگ ہے. مگر آج تک ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. یہ
खुद ही करवाते हैं, खुद ही उनकी पॉलिसी है। ये बलोच और जो है उर्दू स्पीकिंग को जो है उनके दिलों में कोपरास प्लानिंग करके उनमें साजिश किया जाता है। अब देखें यही उर्दू स्पीकिंग जो है लियारी के और कराची हर कोने में बैठे हैं, पठान बिरादरियों के साथ भी बैठे हैं, पंजाबी कभी नौबत नहीं आया है। मगर एमक्यूएम ने जो है वो पठान से भी लड़ा, फिर राजीनामा किया है, फिर उसके बाद पंजाबी से लड़ा है, फिर पंजाबी से राजीनामा किया है, फिर बलोच से लड़ा है, बलोच से भी उन्हें सुलह की, फिर उन्होंने सिंधियों से लड़ाई की। कोई ऐसा सियासी जमात या कोई ऐसा कौम नहीं छोड़ा है जिसके साथ एमक्यूएम ने लड़ाई नहीं किया होगा। और इसमें मैं समझता हूं कि एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी लगाया जाए, पूरे कराची शहर में सुकून हो जाएगा, अमन का गहवारा हो जाएगा कराची। नाज़रीन, आपने सरदार उज़ैर जान की बातें सुनी, मज़ीद इनसे सवालात करेंगे। ख़ासतौर पर इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लियारी ज़रूर चाहिए, क्यों? इस छोटे से ब्रेक के बाद ये सवाल करेंगे इनसे, कहीं मत जाइएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम क्या ये मुमकिन है में। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार उज़ैर जान बलोच। बात हो रही थी लियारी के हवाले से और ख़ासतौर मुत्तहिदा के हवाले से। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा को लियारी ज़रूर चाहिए। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि लियारी मुत्तहिदा को क्यों चाहिए, क्या खदशात हैं इनके? देखो, इसी लियारी ने पूरा कराची को जन्म दिया हुआ है। सबसे पहले लियारी था और लियारी से जो आबादी बढ़ के निकली है वो कराची के तमाम शहरों में फैले हुए, और जब उसको लियारी मिल जाएगा तो पूरा कराची उसके लिए कंप्लीट हो जाएगा, उसका अलग सूबे का मुतालबा पूरा हो जाएगा। क्योंकि लियारी के साथ हमारा सी पोर्ट लगता है, ये तमाम जो है पोर्ट, ये सी साइड वगैरह हमारे लियारी के साथ है, और लियारी के साथ जो सी पोर्ट का इलाका है वो सारा वहाँ बलोच कम्युनिटी रहते हैं, और इस बेस पे उनको लियारी चाहिए। और ये अलग सूबे का मुतालबा इस वजह से भी कर रहे हैं कि ताकि जो है उनको कराची का अलग सूबे का मुतालबा पूरा हो जाएगा, उस दिन दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मट जाएगा। लेकिन क्योंकि उनका मकसद ये है कि बलूचिस्तान और कराची जब अलग सूबा बनाएगा तो उनको हम एक साथ ज्वाइन करेंगे, और ये बहुत बड़ी साजिश है। और बलूचिस्तान के हालात में खराब होने के उसके भी साजिश यही लोग हैं मुत्तहिदा, जो है उसमें अमेरिका और बरतानिया के हाथ में डोर, इसराइल के, उस बेस पे ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मुल्क दुश्मनी है, इनको ऊपर मुल्क गद्दारी का केस लगाना चाहिए। और ये क्यों मुतालबा नहीं करते हैं, मैं एमक्यूएम से ये पूछता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि कराची को क्यों पाक फौज के हवाले किया नहीं जाता है? 3 महीने के लिए हवाले किया जाए, 3 महीने के लिए। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी अपील करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ इफ्तिकार चौधरी साहब से कि कराची को 3 महीने के लिए सिर्फ पाक फौज के हवाले किया जाए। आप देखें यहाँ पर कैसे अमन कायम नहीं हो सकता है। ये पाक फौज के आने से जो है पूरे कराची का कारोबार जो है फिर उठ जाएगा, और लियारी जो है इस कराची को पैदा करने वाला है, और कराची लियारी के अवाम पाक फौज के शाना बशाना होके इस पूरे कराची में अमन का गहवारा बनाएंगे, और रोशनियों का शहर दोबारा कराची शहर के रोशनियां बहाल हो जाएंगी, और वो सिर्फ पाक फौज ही कर सकता है, बाकी किसी में नहीं है। अगर हुकूमत को कराची के अवाम से मोहब्बत है तो मैं समझता हूँ कि वो फिर 3 महीने के लिए कराची शहर को पाक फौज के हवाले करेंगे, और जिस तरीके से और कराची के मजीद लोगों की जानों की हिफाजत भी हो जाएगा। तो ये नहीं कि पाक फौज ही अपना किरदार अदा करे और बाकी जो जिसके वो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी भी साबका जमात थी, इस हवाले से उन्होंने तब तक कुछ नहीं किया, उनके साथ तो वो शरीक हैं बराबर के। देखो, हमारे इत्यादि जो है, इत्यादि अब तो हमारे नहीं है, मैंने तो इस्तीफा दे दिया है। एमक्यूएम जो है वो सब जानते हैं कि उसकी कारकर्दगी क्या है, और हमारा हुकूमत जो है उसमें 5 साल पूरा करने के लिए जिस तरीके से हालात खराब है, मैं समझता हूँ कि पूरा उसमें एमक्यूएम का हाथ है। वो उन्होंने कुछ टाइम एक बयान लगाया था कि हम चाहें कराची में अमन कायम कर सकते हैं, हम चाहें, तो मतलब ये कि कराची में अमन बर्बाद करने में सबसे बड़ा किरदार भी एमक्यूएम का है, जिसमें फारूक सत्तार ने ये बयान भी लगाया।
लेकिन और ये जितने भी लाशें यहाँ गिर रही हैं तो उसका जिम्मेदार इस बात से साबित होता है एमक्यूएम में। सरदार साहब साथ ये बात भी तो है ना कि कराची में सबसे ज़्यादा वोट बैंक सीटों के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो मुत्तहदा कौमी मोमेंट ही है। कलाशन के नोक पे है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाए, जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में जो है लोग अपना वोट कास्ट करते हैं फिंगर के जरिए, तो इस यहाँ पर भी अगर कायम किया जाए तो ये सीटें नहीं निकाल सकेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब तो आज़ाद भी है और उसके होते हुए भी पीछे 2 इलेक्शंस हुए हैं तो उसके बावजूद उनकी सीटें इतनी निकली हैं। नहीं निकलेंगी मेरा भाई, फौज के हवाले करे, इलेक्शन हो जाए, खुदा की कसम ये सीटें नहीं निकाल सकेगा। ये कलाशन के नोक पे सीटें, टप्पा माफिया, टप्पे के जरिए ये सीटें निकाल सकते हैं। हमारे आप देखे लियारी के अंदर यूसी 9 और यूसी 11 में फारूक सत्तार और कुरैशी है कोई एमपी एमएनए, इतना बड़ा लियारी के 2 यूसियों से जो है वो टप्पे मार के कलाशन के नोक पे इन्होंने जीता है मुशर्रफ के दौर में, और आज भी हैं वो। तो उससे ये साबित होता है जहां हमारी वोट बैंक है हुकूमत कोई और हमारे ऊपर कर रहा है। तो इससे पूरा कराची गवाह है। अगर शफाफ इलेक्शन कराने पाक फौज को लाया जाए, मैं समझता हूँ खुदा की कसम अगर वो जीत जाते तो अवाम की दिल की पसंद की जो है वो वोट से जीतेगा वो। अगर फौज नहीं आए तो इसका मतलब है जिसको कलाशन जाएगा वो जीतेगा। लेकिन इससे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ज़ाहिर है जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी, अबूरी हुकूमत जो बनेगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी ज़्यादा होंगे, तो उसमें उसमें उसके बावजूद भी आप मुतमईन नहीं होंगे इस इलेक्शन से। इसका मतलब है जो आइंदा नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं अगर पाक फौज की निगरानी में नहीं हुए तो सरदार साहब आप मुतमईन नहीं होंगे इन इलेक्शन से। नहीं, हम मुतमईन नहीं होंगे, बिल्कुल मुतमईन नहीं होंगे। जिस पे जो है क्योंकि जो यहाँ पुलिस अफसरान होते हैं ना, कुछ कुछ तो ईमानदार हैं, मैं उनको ऐसे अफसरान को सलाम पेश करूँगा जो अपने वतन उनको अजीज़ है और वतन की खातिर सच्चाई से ऐसे पुलिस अफसरान हैं, सिपाही हैं, काम करते हैं। मगर ज़्यादातर सिर्फ अपने कुर्सी के लिए काम करते हैं। बस हमें इस बंदे ने यहाँ पर एसएचओ लगवाया, हमने पैसा ठीक ठाक कमाना है और उसी के साथ वफादारी करना है, और उसी तंजीम के साथ वो वफादारी निभाते हैं और पाकिस्तान के वफादार नहीं होते हैं। और उस बात पे जो है वो पैसों के वफादारी में करते हैं। और जब वो एसएचओ वहाँ होते हैं तो लाजिम वो अपना वफादारी निभा के जो है लाजिम उस एमएनए एमपीए को उस तंजीम के जितवा के दिखाएंगे वो। अच्छा सरदार साहब, आखिरी एक सवाल, आपने इतना टाइम दिया कि आपकी सर की कीमत भी रखी हुई है हुकूमत ने, और अगर आप सर की कीमत आपकी वापस ले ली जाती है, गवर्नमेंट वापस ले ले, जो कि लगता है, और मुकदमात वापस हो जाएं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ जाएंगे आप? नहीं, उस पर अगर उसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ये कैसे वापस लेते हैं, और ये इनाम जो मैं चाहूँ कोर्ट में भी जा सकता हूँ जो है ये वापस हो सकते हैं। अगर सच्चाई से जो सिंध के वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला अगर सच्चाई से काम करें तो ये हट सकते हैं। मगर मैंने मीडिया के सामने ये कह दिया, एक बलोची अल्फाज था मेरा, मैं एक बलोच हूँ गैरतमंद, और मैंने ज़ुबान दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरा दोबारा पीपल्स पार्टी से जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला जो ज़ुबान दिया है मैं वो ज़ुबान पे कायम हूँ, मैं कभी पीपल्स पार्टी में नहीं जाऊँगा। बहुत शुक्रिया सरदार उज़ैर जान बलोच, आपने हमें इतना टाइम दिया और अपनी कीमती वक्त से। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। सरदार उज़ैर जान बलोच की आपने बातें सुनी, बड़े तहम्मुल से, सब्र से और बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने तमाम सवालों को हमारे फेस किया और जवाब दिए। और उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे कुछ हो जाए, मुकदमात वापस भी हो जाते हैं, तो वो हरगिज़ ज्वाइन नहीं करेंगे। बाकी उनकी तमाम बातों से जो हमने लुबार निकाला वो ये है कि लियारी के अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं वो, और लियारी के अवाम जिस तरह उनके पीछे 8 दिन के ख़ासतौर पर ऑपरेशन के दौरान उनका जिस तरह लियारी के अवाम ने साथ दिया है, और नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उज़ैर जान बलोच यहाँ से इलेक्शन में खड़े होते हैं आज़ाद हैसियत से या किसी और सियासी जमात की हैसियत से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ से जीतना, क्योंकि लियारी के अवाम का फ़ैसला, लियारी के अवाम को गढ़ कहा जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाले रहते हैं यहाँ। लेकिन अब चूँकि सरदार उज़ैर जान बलोच और उनके साथ हज़ारों लोग जो हैं उन्होंने चेंज कर लिया है अपना इरादा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और देखना ये है अब कि आने वाला वक्त क्या लेकर आता है। सरवर राज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।